ایک قبیلہ یہ کہتا ہے کہ حجر اسود کو ہم لگائیں گے تو دوسرا قبیلہ اپنی تلوار پاک نکال لیتا ہے کہ اگر حجر اسود کو تم لگاؤ گے تو تمہاری گردن اڑا دیں۔ معاملہ بڑا سخت ہے حضرات محترم، اب کیا کیا جائے؟ کون سا قبیلہ آگے بڑھے؟ کس کو آگے بڑھایا جائے جو حجر اسود کو نصب کیا جائے؟ فیصلہ یہ ہوا کہ کل خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے داخل ہوں گے انہی کے دست مبارک سے حجر اسود کو نصب کیا جائے۔ حضرات خانہ کعبہ میں صبح کے وقت سب سے پہلے حاضر ہونے والی ذات کوئی اور نہیں تھی، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب قوم نے دیکھا کہ اب خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہونے والی ذات کوئی دنیاوی ذات نہیں ہے، دنیا دار کی ذات نہیں ہے، بلکہ مدینے کے تاجدار کی ذات ہے، سب کے چہرے پر اٹھے، سب کے چہرے مسکرا اٹھے اور سب نے فیصلہ کیا۔ اب جو فساد جنم لے رہا تھا، جو ظلم اور بربریت عروج اور انتہا پہ پہنچ رہی تھی، اللہ رب العزت نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب جو آگ پھیل رہی تھی، اللہ رب العزت نے اس آگ کو ختم کر دیا۔ حضرات محترم، تمام کے تمام قبیلے والے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ کل سب سے پہلا جو خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو نصب کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے چلیں اور خانہ کعبہ کی تنصیب کے معاملے کو مکمل فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اپنے ہی دست مبارک سے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو نصب فرما دیتے، لیکن نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے۔ میرے آقا ایک بڑی چادر کو منگاتے اور منگانے کے بعد اس چادر کے بیچوں بیچ میں حجر اسود کو رکھتے اور رکھنے کے بعد چاروں قبیلے والوں کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد آپ چاروں قبیلے والوں سے فرماتے ہیں کہ سب کے سب ایک ایک کونے کو پکڑ لیں، ہر قبیلے والا ایک ایک کونے کو پکڑ لے اور اس طرح سے اس حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے قریب لے جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے اخلاق۔ حضرات محترم، چاروں کے چاروں قبیلے حجر اسود کو اٹھاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے قریب لے جانے کے بعد اس کو رکھ دیتے ہیں اور جب وہاں لے جا کر رکھتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس حجر اسود کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد اپنے دست مبارک سے خانہ کعبہ میں نصب فرماتے ہیں۔ تمام کی تمام تلواریں اپنے ہی آپ نیچے گر جاتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اس آگ کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن حضرات، آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے لمبے جھگڑے کر لیتے ہیں، صرف اپنی منمانی کے لیے، صرف اپنی انا پرستی کے لیے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں۔ میرے آقا کی سیرت تو بڑی خوبصورت ہے، میرے آقا کا اخلاق اتنا حسین اور جمیل ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا انک لعلی خلق عظیم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اخلاق بہت ہی بلند اخلاق ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے بلند اخلاق عطا فرمایا ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو اللہ رب العزت نے ایسا اخلاق عطا فرمایا کہ بڑے سے بڑا کافر جب آپ کے اخلاق کا مطالعہ کرتا تھا، آپ کے اخلاق کو دیکھتا تھا، آپ کے اخلاق کا مشاہدہ کرتا تھا تو حضرات محترم وہ بھی اسلام کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ ایک بہت ہی بڑا یہودی جس کا بچہ کا غائب ہو گیا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں آتا ہے، آنے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا چھوٹا سا بچہ ہے، کئی روز سے غائب ہو گیا ہے۔ اے آقا، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا ہے، آپ زمین پر رہتے ہیں، عرش اعظم کو مشاہدہ فرما لیتے ہیں، آپ زمین پر رہتے ہیں، لوح محفوظ کا مشاہدہ فرما لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ میرے بچہ کو بتا دیجئے میرا بچہ کہاں ہے۔
है, मैं परेशान हूँ, मेरा बच्चा मिल नहीं रहा है। उसकी माँ ने खाना छोड़ दिया है, उसकी माँ ने पानी पीना छोड़ दिया है, वो रोते रोते बुरा हाल किए हुए हैं। या रसूल अल्लाह, आप मेरे ऊपर अपना करम फरमाएं, मेरे बच्चों को बता दें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये आने वाला शख्स कौन था? ये आपका कलमा पढ़ने वाला नहीं था। ये आने वाला शख्स कौन था? ये इस्लाम का वफादार नहीं था। ये आने वाला शख्स कौन था? ये इस्लाम का दुश्मन था। लेकिन इसे पता था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद अरबी को अज़मत अता फरमाई है, वो फजीलत अता फरमाई है कि ज़मीन पर रहते हैं लेकिन आसमान वालों की खबर रखते हैं, ज़मीन पर रहते हैं आसमान वालों का इल्म रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में जब एक शख्स आता है, आने के बाद देखता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबा इकराम बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को इस्लामी तालीम दे रहे हैं, कुरानी तालीम दे रहे हैं। वो शख्स आता है, आने के बाद अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बच्चा गायब है, ऐ आका आप बताते मेरा बच्चा कहाँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जाओ तुम्हारा बच्चा फला बाग में खेल। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब उस यहूदी ने इतना सुना तो फौरन भागने लगा। खुद आज हमारा भी आलम यही है और हर इंसान का मिजाज है, ये फिक्री चीज है कि जब कोई खोई हुई चीज वापस मिलती है उससे बड़ी खुशी महसूस होती। जब उसे ये बताया गया कि तुम्हारा बच्चा फला बाग में टहल रहा है, खेल रहा है, तो हजरत मोहतरम फौरन भागने लगा, दौड़ने लगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मेरे प्यारे सहाबा, जाओ उसे बुला कर के लाओ। सहाबा इकराम गए, जाने के बाद उस यहूदी को बुलाते हैं और कहते हैं कि चलो तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया। हजरत मोहतरम वो यहूदी घबरा जाता है, मामला क्या है, माजरा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तो फरमाया था कि जाओ फला बाग में चले जाओ, तुम्हारा बच्चा खेल रहा है। लेकिन इतनी देर में दूसरा हुक्म आ गया है कि चलो मुस्तफा जाने रहमत बुला रही है। घबरा गया कि न जाने मेरा बच्चा दोबारा गायब तो नहीं हो गया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास जब वो यहूदी जाता है तो आका पता है क्या तालीम देते हैं? यही तालीम आज हमारी भी होनी चाहिए, इसी तालीम पर आज हमारा भी अमल होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनो, आप इस तरह तेजी के साथ दौड़ते जा रहे हैं, आप जब अपने बच्चे के पास पहुंचो, अपने बच्चे के करीब पहुंचो, तो वहां जाने के बाद डायरेक्ट आप अपने बच्चों को प्यार मत करना, आप अपने बच्चों के सीने से ना लगाना, आप अपने बच्चों को लाल कह करके ना पुकारना, आप अपने बच्चों को सूरज कह करके ना पुकारना, आप अपने बच्चों को चांद कह करके ना पुकारना, आप अपने बच्चों को लफ्ज़े जिगर कह करके ना पुकारना। यहूदी हैरत में, मामला क्या है? बेटा मेरा है, बच्चा मेरा है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत ये मुझे कानून अता फरमा रहे हैं कि अपने बच्चे को लाल मत कहना, अपने बच्चे को लफ्ज़े जिगर मत कहना, अपने बच्चे को सीने से ना लगाना। मामला क्या है? बच्चा तो मेरा है, लेकिन ये कौन सा कानून है कि अपने औलाद को सीने से लगाने की इजाजत नहीं? ये कौन सा आईन है कि अपनी औलाद को प्यार करने की इजाजत नहीं? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई यहूदी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह माजरा क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐ आका मेरी समझ से बाहर है, जरा इसकी तफसीर बयान फरमा दें। बेटा मेरा है, लेकिन प्यार करने से आप मना कर रहे हैं। बेटा मेरा है, लफ्ज़े जिगर कहने से आप मना कर रहे हैं। बेटा मेरा है, सीने से लगाने से आप मना कर रहे हैं। ऐ आका इसकी वजह क्या है? तो पता है आका इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो, वो बच्चा दूसरे बच्चों में खेल रहा है, आप जब बाहर जाने के बाद अपने बच्चों को प्यार करेंगे तो हो सकता है वो आपके बच्चे के साथ कोई यतीम बच्चा भी खेल रहा हो, जिसके बाप के साथ साया उसके सर से उठ चुका है। कोई यतीम बच्चा हो, कोई गरीब बच्चा हो, जिसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका हो, अगर आप उस बच्चे के सामने अपने बच्चों को प्यार करेंगे और अपने बच्चे को सीने से लगाएंगे, उस बच्चे का दिल टूट जाएगा। और सुन लो, मैं इस दुनिया में दिलों को तोड़ना नहीं, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका ने बताया, मैं इस दुनिया में रहमत बन के नहीं बल्कि रहमत लिल आलमीन बनकर के आया हूँ। मैं टूटे दिलों को तोड़ने आया हूँ।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब उस यहूदी ने इतना सुना तो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, जिसका दूसरे बच्चों का इतना एहसास है उसे अपना कलमे पढ़ने वालों का कितना एहसास होगा, उसे अपना कलमे पढ़ने वालों से कितनी मोहब्बत होगी। हमने दस्ते मुबारक को आगे बढ़ाए, मुझे इस्लाम का कलमा पढ़ा करके इस्लाम के आगोश में दाखिल। बताइए, क्या मेरे आका ने तलवार उठाई? क्या मेरे आका ने जुल्म किया? नहीं, माज़अल्लाह जो लोग ये कहते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने जुल्म किया, उन्होंने मेरे आका की सीरत का मुताला नहीं किया है, उन्होंने मेरे आका की सीरत को नहीं पढ़ा है। मैं चंद ही मिनट में अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आका की सीरत पर अमल करें। आज हम सीरत से दूर खड़े हैं, ना हम बड़ों की इज्जत करते हैं, ना छोटों से मोहब्बत करते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी का यही पैगाम है कि किसी को हकीर ना जानो, किसी पर जुल्म ना करो, किसी को सताओ मत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका की हदीस है, अन्नासु कुल्लुहुम बनु आदम, तमाम इंसान हजरत आदम की औलाद है, वो आदम मिन तुराब, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को मिट्टी से पैदा फरमाया है। हजरत मोहतरम, मेरे आका ने ये बताया कि तमाम इंसान हजरत आदम की औलाद है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को मिट्टी से पैदा फरमाया है। तो हमें गुरूर करने की जरूरत नहीं है, हमें फख्र करने की जरूरत नहीं है, हमें तकब्बुर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें फख्र करना चाहिए, अपने मुसलमान होने पर फख्र का होना चाहिए, हमें फख्र होना चाहिए अपनी अमीरी पर नहीं, बल्कि आका की मोहब्बत पर हमें फख्र होना चाहिए, आका का उम्मती होने पर हमें फख्र होना चाहिए। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारा हालत ये है, हम बिरादरी में बैठे हुए हैं, हम कबीले में बैठे हुए हैं, हम अमीरी गायबी में बैठे हुए हैं, जबकि मेरे आका ने तो इरशाद फरमाया है, अल मुस्लिम अखल मुस्लिम, ऐ लोगों, अगर तुम मुसलमान हो तो मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका ने ये नहीं कहा कि फला बिरादरी वाला फला बिरादरी का भाई है, माँ अमीर अमीर का भाई है, या गरीब गरीब का भाई गरीब का भाई है, नहीं, बल्कि मेरे आका ने ये इरशाद फरमाया, अगर दिल में इस्लाम है तो आपस में भाई भाई है। तो हजरत मोहतरम, सबसे बड़ा रिश्ता बिरादरी का नहीं है, सबसे बड़ा रिश्ता ईमानी रिश्ता है, सबसे बड़ा रिश्ता इस्लाम का रिश्ता है। तो बताइए, हमारे इस पर अमल होना चाहिए। लेकिन आज हम बटे हुए, आज बिरादरियों में बटे हुए कि मेरे आका की यही तारीफ, क्या मेरे आका की सीरत यही है? आज हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हजरात, आज हमारा अमल क्या है, हमें वो भी तो देखना चाहिए। हम अपने सामने दूसरों को हकीर समझते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, बेशक मोमिन आपस में भाई भाई। लेकिन हमें क्या हो गया है, हम अपने भाई को जलील करना पे तुले हुए हैं, हम अपने भाई को हकीर करने की सोच रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे आका की तालीम नहीं है, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है, ये इस्लाम की तालीम नहीं है, बल्कि इस्लाम की तालीम तो ये है कि अगर हमारा भाई, हमारा मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला, चाहे कहीं का भी रहने वाला हो, अगर उसके दिल में इस्लाम है, उसके दिल में ईमान है, तो हमारा भाई है, हम उस फैसले को बैठाने। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें, हम एक दूसरे को हकीर ना समझें। यही आमद रसूल का पैगाम है। हमें नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, आपने अपने सर को सजदे में रख दिया। हमें फख्र होना चाहिए, हमें एहसान याद करना चाहिए मुस्तफ़ा जान रहमत का, जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया इकराम ने दुआएं की हैं। हमें बड़ी आसानी से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नबी अता फरमाए हैं, तो हमें ये चाहिए हम इसके शुक्रिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने सर को सजदे में रख दें, अपनी मस्जिदों को आबाद करें, अपने मदरसों को आबाद करें, उलमा की इज्जत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, मज़हब इस्लाम के अहकाम पर, उसके क़वानीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारी इन्नल बराउल मुबीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। देखिए, हालात ऐसे नहीं है कि बार बार आपसे कहा जाए, है कि नहीं? आप बैठे रहें, बस आपके इमाम साहब हैं,
ان کو بھی سننا ضروری ہے، کیونکہ اس محفل کو سجانے کے لیے بڑی کاوشیں آپ لوگوں نے